Greetings students, I am Rajesh Vadas and you are learning satellite communication with me. In this series today I am going to discuss the new topic with you. Have you subscribed this channel? No? If you have not subscribed this channel yet, then subscribe it and press the bell icon to get the latest notification. So now let's start the topic. In this video I am going to discuss about the orbits of the satellite. Especially I am going to discuss about the geostationary versus non-geostationary orbits of the satellite. As we know that the path in which the satellite rotates is known as the orbit of the satellite. As per the Kepler's law, we know that the shape of an orbit of satellite in an ellipse with the Earth located at one of the two foci of the ellipse. The shape of the orbit is basically defined by the parameter that is known as the eccentricity. If E is equal to 0, then the shape of the orbit which comes is circular in nature. If the value of E is between 0 to 1, then the shape of the orbit is ellipse. Say this is the earth and this is the plane of the earth, and the earth is located at one of the foci point of the ellipse. Then the shape of this orbit is known as the elliptical in shape if the value of eccentricity is between 0 to 1. If the eccentricity is equivalent to 1, then the shape of orbit which comes is known as the parabolic in nature. If the value of eccentricity is more than 1, then the shape which comes into the picture is known as the hyperbola, or you can say hyperbolic shape of the orbit. That means the shape may be either elliptical in nature, circular in nature, parabolic in nature, or hyperbolic in nature. The satellite orbits are classified in two broad categories basically. One is known as geostationary orbit and it is represented as GSO. Another is non-geostationary orbit and it is represented as NGSO. First see the geostationary orbit. Only one geostationary orbit is possible around the Earth lying on the Earth's equatorial plane. The satellite rotates in this orbit at the same speed as the rotational speed of the Earth on its own axis. The conditions required to be satisfied for geostationary orbit are: the orbit shall be circular, the period of orbit shall be equivalent to the period of the rotation of the earth about itself, and the plane of the orbit shall be same as that of the equatorial plane. The basic features of geostationary orbit are it is located at an altitude, that means the height from the surface of the earth is 35,786 kilometer. The period is basically the time in which the satellite completes one round in that orbit is known as that the period of the orbit. And in case of GSO, that is geostationary orbit, the period is 23 hours 56 minutes 4.091 seconds, that is equivalent to one sidereal day, and which is nearly same as that of the Earth's rotation period. That means we can say the satellite which rotates in GSO, that is geostationary orbit, that which is also known as geostationary satellite, rotates or completes one round in that orbit is equivalent to Earth's rotation period. Orbital inclination is 0 degree, means कि आपका जो अर्थ का इक्वेटोरियल प्लेन है वो और जो आपका जियोस्टेशनरी ऑर्बिट का जो प्लेन है वो, उन दोनों के बीच में जो इंक्लिनेशन एंगल है दैट इज 0 डिग्री. वेलोसिटी मींस द स्पीड बाय विच द सैटेलाइट रोटेट्स इन जीएसओ इज 3.075 किलोमीटर पर सेकेंड. द कवरेज ऑफ द सैटेलाइट इन दिस ऑर्बिट इज 42.5% ऑफ द अर्थ सरफेस. नेक्स्ट इज सब सैटेलाइट पॉइंट. सब सैटेलाइट पॉइंट आपका ऑन इक्वेटर होता है आपका इसका. अगर हम एडवांटेजेस की बात करें जियो स्टेशनरी ऑर्बिटल सैटेलाइट्स की, तो आप इस केस में जो आपका जो कवरेज है 42.5 डिग्री है और 3 सैटेलाइट्स पूरे अर्थ को कवर कर सकते हैं. दैट मीन्स कि आपका जो हैंडओवर प्रॉब्लम है इसमें यहाँ पे हैंडओवर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता. हैंडओवर क्या होता है बेसिकली, जैसे हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन में होता है कि एक यूज़र आपका जो एक पर्टिकुलर सेल में होता है, जब वो टॉक करते हुए या कह सकते हैं आपकी ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द कॉल, जब उसका कॉल आपका रनिंग में है और वो आपका जब स्विच करता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, तो उस मोमेंट पे उसका कॉल ब्रेक ना हो तो आपका स्विचिंग होता है सिग्नल्स का फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, और उसको दूसरी सेल से सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, चैनल्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि आपके जो कॉल है, उस यूज़र का जो कॉल है वो प्रोग्रेस में रहे, कॉल आपका ड्रॉप ना हो. ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज दी हैंडओवर. जितना कम कवरेज एरिया होगा किसी पर्टिकुलर सेल्स का, तो उस मोमेंट पे आपके जो यूज़र्स हैं वो ज़्यादा स्विच करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ज़्यादा स्विच करेंगे तो आपका एक कॉम्प्लेक्सिटी जो सिस्टम की है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है.
ठीक है। तो इस केस में क्योंकि ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो कवरेज है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे इसका ये मेन एडवांटेज है जियो स्टेशनरी ऑर्बिटल सैटेलाइट्स का, कि आपका जो हैंडओवर प्रॉब्लम है यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। नियरली कांस्टेंट रेंज एंड वेरी स्मॉल डॉपलर शिफ्ट, क्योंकि आपका जो डॉपलर शिफ्ट है वो जनरली होता है जब आपका स्पीड में वेरिएशन होता है, लेकिन यहाँ पे जो आपका सैटेलाइट है जो आपका रोटेट करता है उस ऑर्बिट में, उसका जो स्पीड है दैट इज नियरली सेम एज दैट ऑफ द अर्थ्स रोटेशन पीरियड, ठीक है। तो इस केस में आपको जो डॉपलर शिफ्ट है वो ना के बराबर होता है। दैट मीन्स कि आपको जो रिसीविंग एंड पे जो कंपनसेशन की रिक्वायरमेंट होती है, कंपनसेशन सर्किटरी जो आप डॉपलर शिफ्ट का कंपनसेशन सर्किटरी जो क्रिएट करते हैं, उसकी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। सिंपल ग्राउंड स्टेशन ट्रैकिंग एंड मेक रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस विद कांस्टेंट व्यू एरिया। आपकी कवरेज एरिया ज़्यादा होने की वजह से आपका जो ऑब्जर्वेशन है थ्रू जियो स्टेशनरी ऑर्बिटल सैटेलाइट्स जो है वो आपके ज़्यादा अच्छे से कवरेज हो सकता है और रिपीटेड कवरेज आपका पॉसिबल है। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो आपका जो सैटेलाइट अगर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है तो वो आपका पोलर रीजन्स को जो है वो कवर नहीं कर पाता, इसलिए यहाँ पे लिखा है नो पोलर कवरेज। लार्ज फ्री स्पेस लॉस इसलिए इंसर्ट होते हैं क्योंकि आपका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द अर्थ स्टेशन टू द सैटेलाइट वो आपका यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। दैट मीन्स फ्री स्पेस आपका मैक्सिमम होता है, तो आपके जो लॉसेज हैं वो भी आपके यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं, और उस डिस्टेंस की ज़्यादा होने की वजह से आपका जो ट्रांसमिशन डिले है वो आपका ज़्यादा मिलता है इन कंपैरिजन टू अदर ऑर्बिट्स। अगर आपका जो सैटेलाइट है वो अगर किसी और ऑर्बिट में होगा, लोअर एल्टीट्यूड पे होगा, तो आपके उसमें ट्रांसमिशन डिले जो है वो आपको कम मिलेगा। यहाँ पे जो ट्रांसमिशन डिले है वो आपको 250 मिली सेकेंड्स के ऑर्डर के आसपास का आपको मिलता है। एंड लेस स्पेशियल रेजोल्यूशन, क्योंकि इतनी ज़्यादा हाइट से आपका जो विज़न है वो आपका इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, तो आप कह सकते हैं कि इस केस में आपका जो विजुअल जो रिजोल्यूशन आपको मिलेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन जो आपको मिलेगा वो कम मिलेगा इन कंपैरिजन कि आपका सैटेलाइट किसी और ऑर्बिट में हो। सो दीज आर सम फीचर्स ऑफ द सैटेलाइट्स विच रोटेट्स इन जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स एंड दो सैटेलाइट्स आर नोन एज जियोस्टेशनरी ऑर्बिटल सैटेलाइट्स। Now next is non-geostationary orbits. The satellites which rotates in non-geostationary orbits are known as non-geostationary orbital satellites, or you can say non-geostationary satellites. Other than geostationary जितने भी orbits हैं वो सारे के सारे orbits आपके non-geostationary orbits कहलाते हैं, ठीक है। That means कि जो आपके सैटेलाइट्स भी हैं जो आपके जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नहीं हैं, तो वो आपके सैटेलाइट भी क्या हो जाएंगे, नॉन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो। ड्यूरिंग 90s जो है वो आपके नॉन जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट्स हैं वो आपके काफ़ी पॉपुलर हुए हैं। स्टार्टिंग में क्या था, अर्ली डेज में इट वाज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लॉन्चिंग व्हीकल्स, कि आपका जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है वो आपका अचीव नहीं हुआ था, वहाँ पे सैटेलाइट को लॉन्च कर पाना इतना आसान नहीं था। तो एक तो स्टार्टिंग में ये आपके पॉपुलर हुए थे, उसका रीज़न यही था कि आपको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट आपको मिल ही नहीं रहा था जहाँ पे आपको आपके पास इतनी कैपेबिलिटी थी नहीं कि आप वहाँ पे सैटेलाइट को लॉन्च कर सकें, ठीक है। लेकिन 90s में इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस होने की वजह से भी आपके जो नॉन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो हैं वो ग्लोबल पर्सनल कम्युनिकेशन पर्पस के लिए वो आपके पॉपुलर हुए। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें नॉन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स की, तो सबसे जो फर्स्ट एडवांटेज है उसका लेस बूस्ट अप पावर रिक्वायर्ड है इसका, क्योंकि आपका जो एल्टीट्यूड है जिस पे आपको सैटेलाइट को लॉन्च करना है, इन ऑर्बिट्स में लॉन्च करना है, तो आपकी वो एल्टीट्यूड कम होता है इन कंपैरिजन टू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स के। लेस स्पेस लॉस फॉर सिग्नल प्रोपेगेशन एट लोअर एल्टीट्यूड्स, लोअर एल्टीट्यूड होने की वजह से आपका जो स्पेस लॉस है, फ्री स्पेस लॉस है, वो आपका कम होगा। लेस डिले इन ट्रांसमिशन पाथ, लोअर कॉस्ट टू बिल्ड इन लॉन्चिंग द सैटेलाइट एट नॉन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ठीक है, क्योंकि आपका हाइट कम होता है तो आपका जो कॉस्ट है लॉन्चिंग व्हीकल्स का जो कॉस्ट है वो भी आपको कम ही लगता है, तो आप कह सकते हैं कि लोअर कॉस्ट होता है इस केस में, ठीक है। सुटेबिलिटी फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज एट हायर लैटिट्यूड्स। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें हम नॉन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की, तो आपका जो क्योंकि यहाँ पे जो कवरेज है, ऑर्बिटल हाइट जो है आपकी, जो एल्टीट्यूड है वो आपका कम है, इसका हाइट ऑफ नॉन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स की वो कम रहेगी इन कंपेरिजन टू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के, तो आपका जो कवरेज है उस सैटेलाइट का जो कवरेज है वो आपका कम होता है। तो आपको हाइट के अकॉर्डिंगली जो है वो आपके नंबर ऑफ जो सैटेलाइट्स रिक्वायरमेंट है इन दैट ऑर्बिट टू कवर द एंटायर अर्थ,
वो आपके ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर हम कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपकी जो हैंडओवर की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपकी यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है फॉर ट्रांसफरिंग द सिग्नल फ्रॉम वन सैटेलाइट टू another. Less expected life of satellite at NGSO and compensation of Doppler shift is also necessary, क्योंकि आपका यहाँ पे जो स्पीड होगा, आपका जो वेलोसिटी होगा सैटेलाइट का, वो आपका मैच नहीं करेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस रोटेशनल स्पीड ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे आपको जो रिसीविंग अर्थ स्टेशन है वहाँ पे आपको डॉपलर शिफ्ट कंपनसेशन सर्किटरी जो है वो आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स नेटवर्क मैनेजमेंट फॉर कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट एंड कोरेस्पॉन्डिंग ग्राउंड स्टेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल सैटेलाइट्स, जो हमने डिस्कस किया कि काफ़ी सारे आपके सैटेलाइट्स जो है रिक्वायर्ड होंगे नॉन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में टू कवर द इंटायर अर्थ इन कंपैरिजन टू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स के फॉर द ग्लोबल कवरेज। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ नॉन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। अब ये जो टाइप्स हैं नॉन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स की, ये डिवाइड किए जा सकते हैं टू पैरामीटर्स के बिहाफ पे। वन इज इंक्लिनेशन एंगल। Inclination angle means the angle between the equatorial plane of the earth and the orbit of the satellite. Another जो पैरामीटर है वो है आपका height of the orbit from the surface of the earth or from the center of the earth. तो आपका inclination के बिहाफ पे आपका जो है कैटेगराइजेशन है NGSOs का, वो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। वन इज पोलर ऑर्बिट, another is equatorial orbit and third one is inclined orbit. अब अगर ये मान लीजिए हमारा ये इक्वेटोरियल प्लेन है अर्थ का, अगर ये हमारा सेकंड जो ये है ये हमारा प्लेन ऑफ ऑर्बिट है, ये अगर इंक्लाइंड है विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ्स इक्वेटोरियल प्लेन, तो इसको जो एंगल है ये एंगल को हम बोलते हैं इंक्लिनेशन एंगल एंड दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय आई। अगर ये आपका मोर देन 0 है देन इन दैट केस तो आपका जो ऑर्बिट है वो उसको हम बोलेंगे इंक्लाइंड ऑर्बिट। अगर ये आपका i इज इक्वल टू 0 है, इन दैट केस दैट ऑर्बिट विल बी नोन एज इक्वेटोरियल ऑर्बिट। और अगर ये आपका i 90 डिग्री है, ठीक है, अगर आपका 90 डिग्री है तो उस केस में आपका ये जो ऑर्बिट है इट विल बिकम पोलर ऑर्बिट। ऑर्बिटल हाइट्स के बिहाफ पे जो हम नॉन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स को डिवाइड कर सकते हैं वो है हमारे लो अर्थ ऑर्बिट, ऑल्सो नोन एज लियो, एंड द सैटेलाइट्स which rotates in these orbits are known as LEO satellites. Medium Earth orbits, the satellites which rotates in this orbit are known as medium Earth orbit satellites or MEO satellites. Next is highly elliptical orbit, that also represented as HEO, and the satellites which rotates in these orbits are known as HEO satellites. Next is geosynchronous Earth orbit, and the satellites which rotates in geosynchronous Earth orbits are known as geosynchronous Earth orbit satellites. डिटेल में हम जो लियो, मियो, एचईओ और जियो को नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में देखेंगे जब हम टाइप्स ऑफ सैटेलाइट की बात करेंगे। So this is all about the different types of the orbits which are used in satellite communication. So thank you for watching this video.